میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 106 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فکر و فن شعر و سخن میں آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے پروگرام میں پیش ہو کر اپنے قد کو بلند نہیں کر رہی ہے، بلکہ آج یہ شخصیت فکر و فن شعر و سخن کے قد و قامت کو بلند کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 103 کتابوں کی مصنف اور جن کی مزید 20 کتابیں تکمیل کے مراحل میں ہیں، نیز 42 سالوں سے جاری پونے کے معروف سہ ماہی اردو رسالہ اسباق کے مدیر خانوادہ حاجی ابراہیم خان جوڑ اور حجن سائرہ بھی کے چشم و چراغ نذیر احمد خان جوڑ، جو ادبی دنیا میں ڈاکٹر نذیر فتح پوری کے نام سے مشہور ہوئے، آج فکر و فن شعر و سخن کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے فکر و فن شعر و سخن کے مہمان ہیں۔ ایک ایسے مہمان جن کا ادبی شجرا ماہر غالب علامہ کالی داس گپتا رضا، پنڈت لبھو رام جوش ملسیانی، داغ دہلوی سے ہوتے ہوئے ذوق دہلوی سے جا ملتا ہے۔ ایک طرف مالیگاؤں کے استاد شاعر حضرت عتیق احمد عتیق کی چادر شفقت ان کے سر پر تنی رہی، تو رضا صاحب کی شاگردی نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، داغ گھرانے سے وابستہ کر دیا۔ آئیے ہم ان کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، محترم نذیر فتح پوری صاحب 1 دسمبر 1946 کو بمقام محلہ زمین داروان خانجی کی حویلی فتح پور شیخاواٹی راجستھان میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ اسکول عیدگاہ فتح پور شیخاواٹی راجستھان میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ یہ حقیقت بڑی دلچسپ مگر باعث افتخار ہے کہ جن کی تعلیم صرف پنجم جماعت تک ہوئی، ان کا کلام نہ صرف پنجم سے بھی بڑی جماعتوں کی نصابی کتابوں میں شامل ہوا، بلکہ کئی ریسرچ اسکالرس نے ان کی حیات و ادبی خدمات پر مختلف یونیورسٹیوں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ ادبی جریدہ ماہنامہ اسباق، جس کی ادارت محترم نذیر فتح پوری صاحب فرماتے ہیں، اردو، ہندی اور مراٹھی کے قلمکاروں کے بیچ پل کا کام کرتا ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ نذیر بھائی کی ان کی زندگی میں ہی 1992 تا 2009 کے دوران متعدد انعامات و اعزازات سے کئی اداروں کی جانب سے نوازا گیا، مثلاً راجستھان اردو اکیڈمی، آل انڈیا میر اکیڈمی یو پی، مہاراشٹرا اسٹیٹ اردو اکیڈمی، پونے میونسپل کارپوریشن، بہار ساہتیہ سنسد سمستی پور، آل انڈیا قومی یکجہتی کمیٹی فرید آباد، آل انڈیا قومی یکجہتی دہلی، یو پی اردو اکیڈمی، بزم اطفال مالیگاؤں، ہندی اخبار بھارت ڈائری پونا، آل مہاراشٹرا اردو کانفرنس پونا، آل مہاراشٹرا انعامی مقابلہ، تنظیم جماعت المسلمین فتح پور، انڈین کمپیوٹر ایجوکیشن فتح پور، اسلامیہ اسکول عیدگاہ فتح پور، تعمیر سوسائٹی ادے پور راجستھان، جشن امین عظیم کمیٹی پونا، فتح پور شیخاوٹی، بزم خوشتر کھنڈوا جیسے اداروں نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا۔ مثلاً
पुणे का मीर तकी मीर अवार्ड, चराग गजल अवार्ड, ख्वाजा अहमद अब्बास अवार्ड, उस्ताद रशीद रामपुरी अवार्ड, बेंगलोर का गालिब अवार्ड, अमीन अदब अवार्ड, आफ्ताब शेखावाटी अवार्ड, अल्लामा शिबली अवार्ड, हमद नात अकेडमी दिल्ली का अवार्ड, बिहार साहित्य संसद समस्तीपुर मीर तकी मीर अवार्ड, बिहार उर्दू अकेडमी, मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पूना का लाइफ टाइम अचीवमेंट अल्लामा इकबाल अवार्ड के अलावा उनके एतराफ़ खिदमत के कई जश्न मनाए गए। उनकी जो किताबें इनाम की मुस्तहक करार दी गई उनमें तीसरा सफ़र, लफ्ज़ों के साए तले, नया दिन फूट कर निकला, नुक्कड़ उर्दू ड्रामा, गर्द, कालिदास गुप्ता रजा के अदबी सफ़र, मेरे गीत अकेले रह गए, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूट अमेरिका डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी, रसाइल व अखबारात में उनके गोशे भी शाया हुए जैसे सहमाही तवाज़ुन मालेगांव, रोज़नामा मुफस्सिर औरंगाबाद, सहमाही सफ़ीर उर्दू लियोटिन बरतानिया, सहमाही तकमील मुंबई वगैरह वगैरह। इन पर रिसर्च का सिलसिला भी जारी है। मोहम्मद आरिफ भाई ने मकाला बराए यमफिल बउनवान नज़ीर फतेहपुरी की शायरी का तनक़ीदी जायज़ा, डॉक्टर रोशन अख्तर काज़मी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की निगरानी में, नासिरुल्लाह अंसारी ने मकाला बराए PhD बउनवान नज़ीर फतेहपुरी हयात और खिदमत अदब के उन्वान से निगरान का डॉक्टर हामिद अशरफ की रहनुमाई में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी नांदेड़ महाराष्ट्र PhD की। दरसी किताबों में भी आपका कलाम शामिल हुआ। NDA पूना के निसाब उर्दू बराए फौज में नज़्म, राजस्थान के निसाब उर्दू बराए चाहरुम में नज़्म हम पर वतन को नाज है शामिल हैं। राजस्थान के निसाब उर्दू बराए दर्जा शशुम में नज़्म नया अहदनामा शामिल है। राजस्थान के निसाब उर्दू बराए दहम में एक नज़्म खाके वतन शामिल है। साहित्य अकेडमी दिल्ली की किताब उर्दू अदब में बच्चों की एंथोलॉजी में बच्चों की गज़ल शामिल की गई है जो डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी की मुरत्तब करदा है। नाज़रीन, कर्नाटक के अहम अखबारात में हमारा एक मजमून छपा था 21वीं सदी में तनकीद की पेशरफ्त कर्नाटक का मंजरनामा के उन्वान से। इसके बारे में नज़ीर फतेहपुरी साहब ने कहा कि बहुत मेयारी पेशकश है, फिर मुबारकबाद दी। मज़ीद लिखा कि आपके तनकीदी मजमून का आखिरी हिस्सा भी अहम है। आपके मजमून से बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। आपकी तहरीर ने दो पुराने साथियों की याद ताज़ा कर दी, ज़हीर गाजीपुरी और अनवर मीनाई, कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज साहब ने यह भी कहा कि कर्नाटक के कलमकारों जैसे अनवर मीनाई, साबिर फखरुद्दीन से भी उनके मरासिम और मरासिलत उनके दरमियान रही। बारकैफ उनकी खिदमत की फहरिस्त बड़ी तवील है जिनका चंद मिनटों में इहाता करना मुझ जैसे हेश मदान के बस की बात नहीं। एक अजीम शख्सियत के रूबरू खड़े होने की हमारी जरूरत कहाँ, फिर भी उनसे एक मुख्तसर सी गुफ्तगू तो हमारे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। आइए मौसूफ से रास्त बातचीत करते हैं। मोहतरम नज़ीर फतेहपुरी साहब, मैं ये बात बताता चलूँ कि उर्दू अदब, शायरी और समाज के लिए आपकी खिदमत को देखकर पहले तो मैं डर सा गया, फिर खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई, तब कहीं जाकर हमारे चैनल फ़िक्र फ़न शर सुखन में आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ। डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब, डर इसलिए महसूस हुआ कि शायरी अदब का एक ऐसा पहाड़ मेरे सामने है जिसके रूबरू मैं खुद को एक ज़र्रे से भी कमतर महसूस कर रहा हूँ।
मेरी क्या मजाल कि आप जैसी अजीम शख्सियत का जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है इंटरव्यू लेने की जसारत करूं, फिर भी एक सहाफ़ी के नाते ख्वाहिश करूंगा कि आप इस हकीकत से ज़रूर पर्दा उठाएं कि आपने शेर व अदब की खिदमत का इस कदर हमा जहत व हमागीर काम कैसे अंजाम दिया, बल्कि इसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी। ये सफ़र कहाँ से, कब और कैसे शुरू हुआ, और इस वक्त भी आप मसरूफ़ कार होंगे, तो बताएं कि कहाँ और किस नौइयत की मसरूफ़ियत चल रही है और क्या कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने ही एक शेर से कर रहा हूँ कि तायीद में उसी की निकलता है लफ्ज़ लफ्ज़, मैं बोलता हूँ मेरी ज़बान उसके पास है। अज़ीज़ मोहतरम, अज़ीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ऐसे हर्फ नाशनास को तफ़हीम हर्फ का इदराक अता फरमाया और मुझे ऐसे तालिब इल्म के नातवा हाथों में इनाने किरतास व कलम सौंप दी। मैंने जब पहली बार अदब के अलिफ की तख्ती पढ़ी तो मुझे कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन लोग मेरा शुमार अदब के अमीर कबीर लोगों में करने लगेंगे, लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 100 से ज़ायद कुतुब की इशाअत के बावजूद मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं आज भी तख्लीक व तरसील के समंदर के किनारे खड़ा पानी की गहराई का अंदाज़ा लगा रहा हूँ। वो और होंगे जो समंदर की तह तक रसाई हासिल करके बेशकीमत हीरे मोती से अपना दामन भर चुके हैं, लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैं अपने ताल्लुक़ से यही सोचता हूँ, मुझे जो शेर कहना है अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया। जी हाँ, मुझे जो शेर कहना है अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया। इस वक्त मेरी उम्र 75 साल हो चुकी है। अगरचे बज़ाहिर क़वा मुज़मिल हो गए हैं, लेकिन हौसला जवान है। क़ुव्वत तख्लीक़ में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। मुझे याद है मैंने पहला शेर 15 साल की उम्र में कहा था। अब तक मुख्तलिफ़ असनाफ़ शायरी में मेरी 20 से ज़ायद किताबें शाये हो चुकी हैं। मेरा ताल्लुक़ नवाबों के शहर फ़तेहपुर शेखावाटी राजस्थान की मुस्लिम राजपूत बिरादरी से है। 60 बरसों से महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पूना में मुकीम हूँ। यहाँ बरसों मैंने इमारत साजी का काम किया। यही मेरे वालिद साहब का ज़रिया माश रहा। मैं दिन में ईंटें जोड़कर दीवारें बनाता, दीवारों पर प्लास्टर करता और रात में नमाज इशा के बाद किताबों का मुताला करता। जब दिल में तख्लीक की कोंपलें फूटने लगी तो मेरे हाथ में कलम आ गया और कागज़ मेरे रूबरू फैल गया, तो मैं लिखने लगा और फिर लिखता ही चला गया। कभी शायरी, कभी अफसाना, कभी नावल, कभी तबसरा, कभी तंज़ो मिज़ा, कभी शख्सियत निगारी, कभी सफ़रनामे, कभी इदारती नोट, कभी ड्रामे, कभी आप बीती, कभी बच्चों के लिए शायरी और कहानियाँ। न कोई मेरा उस्ताद, न कोई रहनुमा। तख्लीक़ हुनर के ये इब्तिदाई सफ़र अंधेरों उजालों के दरमियान जारी रहे। मैं नहीं जानता कि मेरे रूबरू शेर व अदब की इतनी सारी पगडंडियाँ कैसे आन बिछीं। जब मुझे 1992 में राजस्थान उर्दू अकेडमी जयपुर की जानिब से ज़िंदगी का पहला अवार्ड मिला, उस वक्त के वज़ीर आला के हाथों पहला अवार्ड मिला, तो मुझे अपने कलम की अहमियत का ज़रा सा एहसास हुआ। मैंने सजदा शुक्र अदा किया, लेकिन ये मेरी मंजिल मकसूद न थी। अवार्ड मिलने के बाद मेरे दिल ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। मुझे दर्जा पंजुम की किताब में पढ़ा हुआ एक शेर याद आ गया कि जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। मैंने रखते सफ़र बहुत पहले ही से बांध लिया था, रक्श अदब को एड़ भी लगा चुका था। जब मैं खंदक के उस पार पहुंचा था तो एक अदबी रिसाले ने मेरे गले में बाहें हमाइल कर दी थी और 9 मई 1981 को 6 माही असबाग की इदारत के पहाड़ से जा टकराया। मैं नातवां, इतने बड़े पहाड़ से टकराने की हिम्मत कहाँ से लाता।
خدا کا شکر ہے اسباق آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ اسباق کی اشاعت کا سلسلہ 42 سال سے جاری ہے۔ کچھ سال ہوئے کیفی اعظمی اکیڈمی لکھنؤ کے ایک سیمینار میں مقالہ پیش کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اسباق کو جوان کیا اور اسباق نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جی ہاں، میں نے اسباق کو جوان کیا اور اسباق نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک اور حقیقت کا انکشاف کرتا چلوں۔ میرے لکھنے اور چھپنے کی ابتدا ماہنامہ خاتون مشرق دلی سے ہوئی۔ میرا پہلا افسانہ 1972 میں محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا موتی خاتون مشرق ہی میں شائع ہوا تھا۔ خاتون مشرق کے مدیر مولانا عبداللہ فاروقی صاحب نے ہمیشہ مجھے اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا چلوں کہ ابن صفی کے جاسوسی ناول پڑھ کر میں نے نثر لکھنا سیکھا۔ جی ہاں، ابن صفی کی کتابوں نے ہی مجھے نثر لکھنے کا راستہ دکھایا۔ عزیز صاحب، مجھے اردو ادب نے کیا دیا، اس کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میرے فکر و فن اور شخصیت پر 20 سے زائد کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے ادبی رسائل و اخبارات نے مجھ پر گراں قدر گوشے شائع کیے۔ ہندوستان کی 2 درس گاہوں نے میرے فکر و فن پر PhD کے لیے مقالے قلم بند کروائے۔ MPhil کے لیے ایک مقالہ راجستھان یونیورسٹی جے پور میں لکھا گیا۔ ہندوستان کی مختلف صوبوں کی 5 اردو اکیڈمیوں نے میری کتابوں پر انعام دیے۔ اردو قارئین سے مجھے بہت پیار ملا، بہت عزت ملی، احترام ملا۔ میرا گھر کتابوں سے بھر گیا۔ اوپر نیچے ادھر ادھر جہاں دیکھو کتابیں ہی بکھری نظر آتی ہے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سنا دیتا ہوں کہ گئے جو گھر میں نظیر کے ہم، تو چاروں جانب یہ حال دیکھا، یہاں کتابیں وہاں کتابیں، جہاں بھی دیکھا ملی کتابیں۔ جی ہاں، میرے گھر میں کتابوں کا یہی عالم ہے۔ بظاہر خوبصورت، خوشگوار دکھائی دینے والا یہ ادبی سفر اپنے اندر بہت سی تلخیاں بھی رکھتا ہے۔ اس چمن میں پھول تتلیوں کے ساتھ ساتھ خاردار جھاڑیوں نے بھی مجھے لہو لہان کیا۔ بعض موقعوں پر مجھے روکنے کے لیے لوگوں نے رفتار شکنگی استادہ کیے۔ ایک افسانہ نگار نے تو میرے خلاف فتویٰ بھی جاری کرا دیا تھا، لیکن قدرت نے مخالفت کے سارے ہتھیار کند کر دیے اور میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں میری والدہ محترمہ کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ میری اہلیہ نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے اسباق کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا۔ اس تعلق سے اپنا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تیل کے جلوے تمہیں مبارک ہو، تمہارے تیل کے جلوے تمہیں مبارک ہو، میرا چراغ تو ماں کی دعا سے جلتا ہے۔ جی ہاں، میرا چراغ آج بھی میری ماں کی دعا سے جل رہا ہے، روشنی لٹا رہا ہے۔ اپنی غزلوں کی کتاب سفر تا سفر اپنے شریک حیات سے منسوب کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا، اس کے نام جس نے زندگی میں کبھی میرا شعر بھی نہیں سنا، لیکن جس کی رفاقت کے بغیر میں ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا، گھر کی دہلیز اکھڑ گئی۔ وہ جس نے ساتھ نبھایا تھا ہر مصیبت میں، وہ ساتھ چھوڑ گئی، آج یہ مصیبت ہے۔ وہ ساتھ چھوڑ گئی، آج یہ مصیبت ہے۔ جی ہاں، اس مصیبت کے باوجود میرا قلبی سفر آج بھی جاری ہے۔ میری 3 کتابیں اس وقت اشاعت کی منتظر ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے مجروح سلطان پوری حیات اور ادبی خدمات، اور دوسری کتاب ہے میرے افسانوں کی۔ ابھی تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں میری افسانوں کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی ہے۔ اب میری کتاب اجالے کی طرف کی اشاعت کا انتظام ہوا ہے، وہ کتاب بہت جلد آپ کے سامنے آئے گی۔ ماشاءاللہ نذیر فتح پوری صاحب، آپ کی ادبی زندگی کے سفر کی یہ دلچسپ روداد اپنے اندر علم و عمل کی ایک کائنات رکھتی ہے۔ خدا کا شکر کہ آپ جیسی شخصیت آج ہمارے ناظرین کے
रूबरू हुई और इस तरह हमें भी आपसे इस्तिफादे का मौका नसीब हुआ। नज़ीर भाई, आपकी इस कदर बड़ी तादाद में शाये शुदा किताबों को देखकर एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि इनकी नक्काशी का आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है? अजीज साहब, किताबों की निकासी का सवाल तो बाद में आता है, पहले किताबों की इशाअत का बड़ा मसला है। मेरी पहली किताब चट्टानों के बीच उन्वान से 1975 में एक नावल के सूरत में शाये हुई थी। उस वक्त 1500 रुपये में 500 का कापी आसानी से छप जाया करती थी। उन दिनों मैं मिस्त्री का काम करता था, 5 रुपये योमिया उजरत मिलती थी। ऐसे कस्मपुर्सी के हालात में भी मैंने अपनी पहली किताब अपने गाढ़े पसीने की कमाई खर्च करके शाये की थी। कुदरत पर मेरा पुख्ता यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर मेरा पूरा भरोसा है। किताब लिखते वक्त मैं उसकी इशाअत के लिए कतई फ़िक्रमंद नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई अमीर कबीर आदमी हूँ। मैं मज़दूर के घर पैदा हुआ, मैं कल भी मज़दूर था, आज भी मज़दूर हूँ। अदब में मैंने कभी तिजारत नहीं की, अलबत्ता पहले मेरे हाथ में काम करने के लिए करनी और हथौड़ी जैसे औजार हुआ करते थे। आज इन्हीं हाथों में कलम है, कागज़ है। कलम मेरी मीरास है, मेरा सरमाया हयात है। मैं कलम का मुहाफिज हूँ। किताबों की निकासी मुझसे कभी नहीं हुई। कुदरती तौर पर मेरी किताबों की इशाअत हो जाती है। अगर मेरी अब तक की तमाम किताबें मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त हो जाती तो आज मेरा भी अमीर लोगों में शुमार होने लगता। कभी कभी मैं अपना ही ये शेर पढ़कर अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ कि नहीं झुकते हैं मालो ज़र की लालच में हम ऐसे लोग। कलम के शाहजादों को ये बीमारी नहीं होती, कलम के शाहजादों को ये बीमारी नहीं होती। उर्दू वालों ने मुझे प्यार दिया, दादो तहसीन से मेरा दामन भर दिया। यही मेरे लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं। मैं आपके नुक्ते नज़र की तायीद करता हूँ। बिल्कुल बजा फरमाया आपने नज़ीर भाई। अदब अतफाल के काम के बारे में भी बताएं कि इस कदर संजीदा मौज़ूआती मिजाज रखने के बावस्फ़ किन महर्रिकात की बिना पर आप अदब अतफाल की तरफ भी मतवज्जो हुए? अजीज साहब, बच्चों के लिए लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं। अदब अतफाल के लिए पहली नज़्म मैंने अपनी बड़ी बेटी जीनत की फरमाइश पर लिखी थी। ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। नज़्म का उन्वान था बच्चों आओ गीत सुनाएं। बाद में इसी उन्वान से बच्चों के लिए मेरी पहली किताब 1982 में शाये हुई। इसका फ़ायदा ये मिला कि बाद में राजस्थान के उर्दू निसाब की 3 किताबों में मेरी 3 नज़में शामिल हुई। मेरी तालीम दर्जा पंजुम से आगे नहीं हुई, लेकिन मेरी नज़में दर्जा शशम और दर्जा दहम में पढ़ाई जाने लगी। बच्चों के लिए कहानियों की 3 किताबें रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव से शाये की। अमीर तैमूर की ज़िंदगी पर बच्चों के लिए आसान ज़बान में 2 नावल भी मैंने लिखे। मेरी कहानियों की किताबों के उन्वान है मेरा देश महान, पेशावर की 17 कहानियाँ और छोटा बच्चा छोटी किताब। बच्चों की वजह से मुझे साहित्य अकेडमी की जानिब से 2017 में कौमी अवार्ड मिला। मेरी कहानियों की किताब मेरा देश महान पर यह बड़ा इनाम मुझे अता हुआ था। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। मासूम बच्चे मुझे रंग बिरंगी तितली की तरह महसूस होते हैं। मेरे नबी ने बच्चों को जन्नत के फूल करार दिया। बच्चे जन्नत के फूलों से कौन प्यार नहीं करता भला, क्योंकि बच्चे का दिल दर्पण जैसा, बच्चा कांच के बर्तन जैसा। बच्चा आए खुशियाँ लाए, बच्चा जाए गम दे जाए, बच्चा जाए गम दे जाए। लेकिन मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि मैंने अपने बच्चों को आला तालीम से हमकनार न कर सका। जी हाँ, मैं अपने बच्चों को आला तालीम से हमकनार न कर सका। इसमें मेरी नीयत को नहीं, मेरे हालात को दखल था। खुदा का शुक्र है मेरे पोते पोतियाँ तालीम के मैदान में पढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। आपकी ये गुफ्तगू सुनकर हमें भी अपना बचपन याद आ गया। नज़ीर भाई, हमारे प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब,
फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन के ताल्लुक़ से मैं मुस्बित राय रखता हूँ, इसलिए नहीं कि आज मैं इसका हिस्सा हूँ, बल्कि आप जिस तरह पुरखुलूस जज्बे और सदाकत के साथ उर्दू के अहले कलम को सजा संवार कर पेश करते हैं, ये काबिल दादो तहसीन ही नहीं, लायक तक़लीद कारनामा है। अजीज़ साहब, आप उर्दू के मुजाहिद हैं, उर्दू के मुबल्लिग़ हैं, आपके पास खूबसूरत अल्फाज का ख़जाना है जो आप बिला गर्ज़ व ग़ायत उर्दू के अहले कलम पर निछावर करते रहते हैं। कुछ अहले कलम को मैंने पहली बार आप ही के तवस्सुत से जाना और उनका तारुफ हुआ। ये खुद सताई और ख़ुद पसंदी का दौर है। हर जगह हर शख्स अपने नाम का कासा आगे रखता है। ऐसे माहौल में आप सखी हातिम का किरदार अदा कर रहे हैं। हातिम ताई के 7 सवाल होते थे, आपके 6 सवाल हैं। इन सवालों के तवस्सुत से आप एक फ़नकार की ज़िंदगी के अंधेरे उजालों की पूरी कहानी सामीन कराम के रूबरू पेश कर देते हैं। ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपको फ़न से भी और फ़नकार से दोनों से मोहब्बत है। फ़न से मोहब्बत करना और फ़नकार से मोहब्बत करना ये बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है, और ये काम आप अच्छी तरह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, आपकी हिम्मत अफजाइयों के लिए। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के बारे में आपकी राय गोया हमारे लिए सनद से कम नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने कलाम से भी नवाजें, और मैं खुसूसन चाहूँगा कि अतफ़ाल के लिए लिखी गई मंज़ूमात में से एक नज़्म ज़रूर इनायत फरमाएँ। आपकी ख्वाहिश के एहतराम में अदब अतफ़ाल के सिलसिले में अपनी एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है हरी झंडी। जी हाँ, छोटी सी नज़्म है और छोटे छोटे जुमलों में मैंने यह नज़्म कहने की कोशिश की है। मैं नज़्म पेश करता हूँ। उन्वान है हरी झंडी। चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल, पहले रेल बन फिर खेल बन, छुक 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 तेज तेज चल, चल भाई चल पटड़ी बदल, रोना कर बस हंस हंस हंस, दुख से निकल खुशियों में ढल, चल भाई चल पटड़ी बदल, आगे आगे बढ़ आगे आगे बढ़, दरिया पे चढ़ वादी में उतर आग को कुचल, चल भाई चल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और बंद है कि देख 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 रास्ता है नेक, प्यार का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, नेक रास्ता है। देख 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 रास्ता है नेक, ठहरे न कदम होगा फिर सफल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और एक बंदोर के शेर शेर बोल, शेर शेर बोल गीत अनमोल, पढ़ के सुना ताज़ा गज़ल, चल भाई चल पटड़ी बदल। और ये आखिरी बंद कि खुशी खुशी कर अपना सफ़र, खुशी खुशी कर अपना सफ़र, मिलजुल कर साथ साथ चल, चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल, चल भाई चल पटड़ी बदल। बहुत खूब, बहुत शानदार। मोहतरम, अब आखिर में हमारे नाजरीन के लिए उमूमन और शेर अदब से जुड़े हुए अफराद के लिए खुसूसन आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे मोहतरम नज़ीर भाई? आपके बालिग नज़र नाजरीन के लिए भला पैगाम देने की जसारत मैं कैसे कर सकता हूँ। बस इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि किसी भी सूरत में उर्दू जैसी शीरीं और दिलकश ज़बान को मरने न दे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसे गले से लगाएं, क्योंकि मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई, मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई। ये उर्दू हिंद की प्यारी ज़बान यूँ भी है और यूँ भी। जी हाँ, ये उर्दू आज भी मुसलमानों को जोड़ती है। आज भी ये अपने दामन में मोहब्बत का बहुत बड़ा पैगाम रखती है। अब ये है कि हम उर्दू से जो नाशना है उन लोगों तक उसको कैसे पहुँचाएँ और कैसे हम आने वाली नस्ल के लिए उर्दू की हिफाजत करें। चलते चलते आखिर में मैं अपने कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि 3 शेर है। ये शेर मेरे दिल की आवाज़ भी है
اور میری زندگی کا مقصد بھی ہے، زندگی کا ایک طرح کا جو وہ آگے بڑھنے کا یہ شعر مجھے حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں ہوشیار دیوانہ ہوا نہ ہوا، میں ہوشیار دیوانہ ہوا نہ ہوا، ہوا کے ساتھ روانہ ہوا نہ ہوا۔ یہ کم نہیں کہ زمانے کے بس میں ہم نہ ہوئے، یہ کم نہیں کہ زمانے کے بس میں ہم نہ ہوئے، ارے ہمارے بس میں زمانہ ہوا نہ ہوا، ہمارے بس میں زمانہ ہوا نہ ہوا۔ اور آخری شعر ہے کہ ہمارا کام کمندے اچھالنا ہے فقط، ہمارا کام کمندے اچھالنا ہے فقط، بلندیوں پہ ٹھکانہ ہوا نہ ہوا۔ جی ہاں، ہمارا کام کمندے اچھالنا ہے فقط، بلندیوں پہ ٹھکانہ ہوا نہ ہوا۔ میں ہوشیار دیوانہ ہوا نہ ہوا، ہوا کے ساتھ روانہ ہوا نہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عزیز بھائی، آپ نے یاد کیا، ایک بہت اہم پروگرام میں مجھے شامل کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اس گراں قدر پیغام کے لیے محترم۔ میں عزیز بلگامی اپنی جانب سے سیدھی بات اور فکر و فن شعر و سخن کے جملہ وابستگان کی جانب سے اور ہمارے 6 بر اعظموں میں پھیلے 12 لاکھ ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحت کے مختلف مسائل اور علمی و ادبی مصروفیات کے باوجود بھی فکر فن شعر و سخن کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے چینل کی شان بڑھائی۔ بہت بہت شکریہ محترم نذیر فتح پوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ عزیز بلگامی اور محترم نذیر فتح پوری صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے۔